Mane Farhan Tahir, easily one of the most recognizable South Asian faces in the world today. So let me get this intro right first. All right. Right? Born and raised between Lahore and LA, Yes. born to two extremely dynamic and extremely well-esteemed parents. I mean, absolutely, right? I mean, literary there's figures. there's no doubt Literary about figures, that. absolutely, Naeem and Yasmin Tahir. Yeah. And you studied in LA and you studied theatre at Berkeley. I studied, Berkeley. I studied theater, and Then you did advanced acting at Harvard. Yeah. And then you started a career and you built a really strong resume on television, American television, Hollywood films, Shakespearean theatre. And some 30 years into your debut, into your career, you've come back. The prodigal son comes home. You have come home to your roots, and Yes, you have actually made a debut on Pakistani television with Leader. And now we are seeing you in Bas Tera Saath Ho. आगा वासिफ वर्सेस मुरसलीन सुलेमान ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दो कैरेक्टर्स हैं बट फरहान एक तो वेलकम टू समथिंग हॉट Thank you. Delighted to have you back in Pakistan also as part of the industry. I think you're adding a lot of weight to the industry dynamic. And that remains to be seen, but hopefully. At least with Agha Wasif, but we'll get to that. And of course, this is a really interesting time to be an artist, I feel, in the world as well. क्योंकि ये वो वक्त है जब एक तो पाकिस्तानी टेलीविजन ग्लोबली बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, डायस्पोरा भी कर रहा है और बहुत बात हो रही है. आई थिंक सोशल मीडिया, इट्स ऑल लाइक इट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. It is being talked about वैसे भी because industry or media has also gone global. Yeah. You see? Yeah. अब हम लोगों की वो कैद नहीं है. Yeah. So I think that's, and उसमें कोविड का बहुत बड़ा हाथ है मेरे नज़दीक. Right. क्योंकि अब ऑल ऑफ अ सडन कोविड से पहले सब टाइटल वॉज ए पेन. अब हमारी आंख को ना आदत हो गई है, तो इसलिए द कंज्यूमर इज आल्सो इज एक्सपैंडिंग. राइट. यू नो, लेकिन इंटरेस्टिंग वक्त इसलिए भी है क्योंकि इवन इन द वेस्ट साउथ एशियन एक्टर जो है उसको भी ही इज गॉट अ प्लेस इन द रूम दैट इज नॉट ऑन द मार्जिन्स एनीमोर. सो वो भी एक डायलॉग शुरू हो रहा है, which actually you started in 2008 with your role in Iron Man. Yeah, उसमें the thing was, if I go back, so जब मैंने शुरू किया था ना वहाँ पे, उस वक्त कोई इतने अच्छे roles नहीं थे. Yeah. ठीक है. So what I did was कि I focused more on theatre then. Yeah. क्योंकि theatre की बात ये थी कि if you can do Shakespeare, if you can do verse, तो फिर आपकी रंग, आपका वो सब कुछ है, that was not as important. So that gave me a base. And that gave me this ability to just kind of wait and see कि कब, you know, when something good will happen. Yeah. So that was my journey. लेकिन अब, not because of me, but because of a lot of people, it has expanded. Yeah. I mean, दूसरा, as I was saying, क्योंकि market global हो गई है, तो from even a business perspective. Yeah. जब प्रोड्यूसर ये देखता है कि जब अब मैं डोमेस्टिक मार्केट को सिर्फ हैंडल नहीं कर रहा हूँ, उनको ग्लोबल मार्केट में जाना है, तो दे वांट टू पुट कैरेक्टर्स इन विद मोर लेयर्स, मोर डायनामिक्स इन देयर, सो दैट पीपल कैन आइडेंटिफाई विद देम. राइट. यू नो, सो इट्स चेंजिंग एंड इट्स अ रियली एक्साइटिंग टाइम. इट इज. सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि सबसे पहले कि व्हाई डिड यू चूज दिस टाइम? वापस आने का ये वक्त आपने क्यों मुकर्रर किया? कैसे आप वापस कैसे आए? And I know we have a tendency to slipping into English, but हम कोशिश करेंगे. हाँ, उर्दू बात. उसकी एक्चुअली दो बड़ी वजूहत थी. एक तो ये था, वो पर्सनल वजह थी क्योंकि मेरे वालिदैन, you know, they were getting older. Yeah. And my अम्मी जो पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, उनको डिमेंशिया था. जी. तो उसमें ये होता है, खास तौर पर डिमेंशिया में अगर आप उनके सामने नहीं हो ना, तो फिर आप हो ही नहीं. आप हो ही नहीं. ठीक है. तो पिछले 4-5 साल में मैं ये कोशिश कर रहा था, कुछ थोड़ी फिल्में करके, कुछ करके, ताकि मैं देखूं कि मैं यहाँ पे रह के क्या सिर्फ रहने ना आऊं, बल्कि फुल्ली आ जाऊं. तो एक तो ये अच्छी बात. दूसरा ये है कि क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्टेज पे आ गई है, एंड ऑल्सो क्योंकि करियर में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है, कि अब आपको एक जगह पे होना लाजमी नहीं है. जिस तरह अभी मैंने पिछले साल एक मार्वल सीरीज की थी, वो मैंने यहाँ से बैठ के, मेरे एजेंट्स ने और हमने डील की, मैं लंदन गया, मैंने जाके वो की, अब मैं वापस आ गया. राइट.
तो इसलिए अब क्योंकि चीजें ग्लोबल हो गई तो कोई Yeah. लाजमी नहीं है कि आप लॉस एंजलिस में बैठोगे तो बिल्कुल आपको काम मिलेगा। बिल्कुल दूसरा, क्योंकि अब लोग भी थोड़ा सा फेमिलियर हैं काम से, उनको पता है कि यार ये कितने पानी में क्या कर सकता है, हम्म, तो अगर जरूरत है तो बुला लेते हैं, अगर नहीं है, अगर ऑडिशन करना है तो वो भी आप जूम पे या हो यू नो जाता है। टेप करके भेज दो बस। ऑल्दो ट्रैवलिंग मुश्किल हो गई है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, अब नामुमकिन नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया है। सो आई मीन वो हालात की वजह से मुश्किल हुई है, लेकिन या अब तो वो डिस्टेंसेस भी खत्म हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इतना कोई मसला नहीं है अब। बिल्कुल। सो यू आर गोइंग टू बी दैट एक्टर हु इज हियर एंड देयर। यस 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 राइट, यस दैट्स यस ग्रेट। बड़ा क्लीशे सा सवाल है, लेकिन बॉडी ऑफ वर्क बहुत आपका बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे मार्वल यूनिवर्स भी है, और बहुत सारा टेलीविजन भी है। कैन यू लाइक आइडेंटिफाई वन एज योर फेवरेट? कैन यू पिक अ फेवरेट? कि मुश्किल है? मुश्किल इसलिए मैं इसके बारे में काफी सोचता हूँ कि ये सवाल आता है ना। हाँ मेरे लिए इट्स मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग। ठीक है। ठीक है, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आप जब तक सिल्वर स्क्रीन पे ना देखो उनका मजा नहीं आता। ठीक है, जिस तरह आयरन मैन है या Yeah. स्टार ट्रेक है, आप स्टार ट्रेक को अगर स्टेज पे जाके देखोगे तो मजायका खेज लगेगा। राइट ठीक है, कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें आपको कहानी को खोलना है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो एक और चैलेंज है एक्टर के लिए। फिल्म कर रहे हो, आपके पास 2 घंटे हैं, आपको एक कहानी सुनानी, उसकी पेस मुख्तलिफ है, उसकी फील मुख्तलिफ है। आप टेलीविजन कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे तो 26-40 किस्तें होती हैं, वहाँ पे 13 से ज़्यादा नहीं बनाते हम लोग। तो लेकिन आपके पास वो एक मार्जिन आ जाता है, आप ये देखते हो कि अच्छा यार अगर मैं पहली किस्त में ये कर दूंगा तो क्या मैं अपने आप को ट्रैप कर रहा हूँ कि 13वीं किस्त में कुछ वो बात ना बने। सो आप अपने आप पर इकोनोमाइज करते हो। और कुछ कहानियां ऐसी हैं जो स्टेज पे ही मजा आता है, उसमें एक इंटीमेसी है, उसमें एक कनेक्शन है ऑडियंस के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑडियंस जो है स्टेज पे आपका फाइनल कास्ट मेंबर होता है। क्योंकि आप जब भी पूछो किसी स्टेज एक्टर से ना, पहला जो जाता है बाहर, व्हेन यू कम ऑफ, हमेशा यू आस्क हाउ इज द ऑडियंस टुडे। क्योंकि वो एक अपना अच्छा, हाउ इज द ऑडियंस टुडे? हाउ इज द ऑडियंस टुडे, Okay. राइट? उसमें ये होता है बिकॉज दे कम इन विदाउट स्पीकिंग टू ईच अदर, दे ब्रिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर, Yeah, they bring their own sense of tragedy, yeah, you know, and then aapko on stage then you gauge yeah. कि अच्छा An exchange of energy, right? एग्जैक्टली। और मेरे लिए वो जो है ना, वो मेरे लिए वो एक, कुछ लोग ऑडियंस को एनिमी समझते हैं या अपोनेंट समझते हैं, Yeah, मेरे लिए दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। right. I pull their energy and I give them back whatever I can. So what I'm taking from this is you enjoy theater the most. Look, I'll be honest. Yeah. Actor के लिए, to be very honest, theater is the medium. Theater is medium. And I'll Yeah. tell you why. Stage for an actor is the medium, क्योंकि एक दफा जब बत्ती जल जाती है, उसके बाद कुछ भी हो जाए आपको इसको आखिर तक लेके जाना है। Yeah, ठीक है, और आपको कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय आपके साथियों के। yeah. ठीक है, फिल्म टेलीविजन इज अ ब्यूटिफुल मीडियम, लेकिन उसमें यह है कि देखें, अगर एक कोई टेक जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, वो मैंने कर दी, मैं कहा यार ये जो थी ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो किसी वजह से शायद ना लगे। Yeah. ठीक है, साउंड का मसला हो सकता है या डायरेक्टर का कोई और विजन हो सकता है। सो बेसिकली मेरे नज़दीक फिल्म एंड टेलीविजन है डायरेक्टर और एडिटर का मीडियम। Right. वहां कहानी बनती है, Right. उसमें एक्टर का कंट्रोल कम है, लेकिन चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अब आप देखो स्टेज पे आपको जो इमोशन है उसको लेके जाना है वहां तक, एक ही उसमें। ठीक है, टेलीविजन में और फिल्म में ये है कि आपकी अगर 4 टेक्स हैं और आपका बहुत इमोशनल सीन है तो आपको वो इमोशन सस्टेन करना है। हर टेक के लिए Yeah. फ्रेशली आपको दोबारा वो लेके आ, तो उसका मजा और चैलेंज और है। Yeah. लेकिन अगर एक्टर Exhausting, we say. Exhausting, Sounds like exhausting. Yeah. लेकिन थिएटर का ये है कि आप, क्योंकि अब आपने